The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. नमस्कार। ट्रेनिंग एंड द प्लेसमेंट सेल के बिहाफ पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे फर्स्ट CMS सीरीज के पहले सेशन में। आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अब इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयारी करते हैं। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं आपको इस सीरीज के माध्यम से जिसमें एक्सपर्ट्स आके आपसे बात करेंगे कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया के लिए तैयारी कैसे करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता ही नहीं होता कि साहब जाना कैसे है, हमें यही पता ही नहीं होता कहाँ कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ों की हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है, नहीं पता होता है। तो ये सीरीज के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि एडवर्टाइजिंग में कैसे जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस में कैसे जा सकते हैं, जर्नलिज्म में कैसे जा सकते हैं, प्रिंट मीडिया में कैसे जा सकते हैं, डिजिटल मीडिया में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस सीरीज का मकसद है। इसमें आपको मालूम है कि 8 सेशंस हैं और सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इसमें बुलाए गए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद कि जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं आपका कमिटमेंट देखा जाता है कि आप कितने कमिटेड। जॉब मिलना कोई मुश्किल नहीं है, आप इंटरव्यू दीजिए जॉब मिल जाएगी सब, लेकिन सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने दिन तक सस्टेन करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आपको तैयार कैसे होना है, आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, इंटरव्यूज कैसे फेस करने हैं, इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, इन सब के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा DME मीडिया स्कूल के डीन डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी से कि वे आए और इंडस्ट्री के अंदर क्या अपडेट्स हैं, इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से जॉब क्रिएट होती है, किस तरीके से जॉब में किस तरीके की जरूरतें हैं, इन पे बात करें। तो डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन DME मीडिया स्कूल। Okay, so as it's a customary thing, every year we organize these kind of sessions, and when we started 2 years back this series, the objective was that to apprise the students who are passing out from the institute with a BJMC degree. They should know as to what all is there in the industry and what all they can do in different areas, in different on different platforms of media, and those who want to study further, what all avenues are there. So obviously this is an exercise which should be done much in advance, but the way the university sessions are happening and the examinations delaying at all, so that is how all this has delayed. Particularly if you look around, there are a lot of things which can be told, and I think with all the experience of internship and all, you would have understood many things by now. So those who want to join the industry, so they need to decide very clearly what they want to do. Obviously you can do a lot of experimentation, but then it's always better if you make up your mind which area you want to work at.
maybe journalism. I mean, how do you decide? So, the first thing is that you should look into this, whether you are interested in journalism or advertising or public relationing or event management. So, this is one way of making a selection, which area, which platform you are working, and then obviously you want to be in print or in television or in radio or in digital media. These vital decisions need to be taken, and there are two ways which can help you in taking a decision. One, what is your knowledge level or your skill set, that is one. You should know yourself, or if you are not knowing this yourself, take the help of your peers, take the help of your teachers to make out as to what exactly is your knowledge and what kind of skills you have at your disposal. This is one area which you be sure of. The another area on the basis of which you can decide is depending on your knowledge and your skill set, whether that matches with the openings in that particular sector. For instance, I give you an example, and there has to be a match between the two. Like if you want to enter suppose in the advertising field, but then you discover within the advertising also, within the journalism also, you have to further zero in as to what exactly, like as I gave you started giving you example of advertising. So, you have to be sure whether you want to go for client servicing or whether you are going for the creative side, wherein you will be producing the copy or writing the copy. Now, suppose if you decide that you are good in that, but then if you look at the growth of the industry in that particular area, and you find that the industry is not growing with that pace wherein there are job opportunities, wherein the growth will be such that after 5 years or 10 years there will be ample opportunities. So, if you feel that both the things are not matching, what you possess and what is the scenario in the industry, then you should be ready for plan B, because it can never happen that with whatever you have, with that you get the job in the industry which is not growing that way. When I am saying that industry not growing, so you have to make a distinction, like advertising, whether you are referring to advertising industry or the news industry or the entertainment industry. So, that way you have to have a classification, right. So, this and suppose if you are too inclined to enter a particular industry and you feel that you do not possess all that which is actually desired, which is essential to enter that industry, then what could be the way out? You should try to learn all that which is necessary, and then obviously that should have happened, and I believe to some extent that has already happened in many cases, wherein you make up your mind and then you focus in those areas, like those who want to go into production. Many of you are already into that. So, you have already decided that if you want to go to the production side, you have to be good in camera, you have to be good in editing, you have to be good in scripting and all. And if till date you haven't done that, then what is the way out? Suppose you decide today that you want to enter into this area and you have some skills at your disposal, and but then you feel that it is not easy to enter that field instantly. Either you do not feel yourself prepared for that with whatever you know, or you feel that it is not the right time to enter this particular industry because the growth is not happening that way. Then there is still time. You can always take up 1 year or 2 year programs in that particular area. There are a lot of diplomas or PG diplomas available in different areas. So, you can take up any one such diploma wherein you want to excel and which you want to do
in your career. So, that could be one option. The other option could be that if further you want to study more, though the kind of papers that you have studied or you have been studying for the last 3 years or so. So, that gives you exposure to almost everything which exists in media, but still there are a lot of such things which you need to know, and even if you know that you need to polish so many things which you have done to some extent, but depending the time when you entered the institute, because of corona and all, you feel that you do not have hands on lot of things which you need to have, then you can take up a diploma. So, you can plan your further studies. Their 1 year diploma are practically for 8 to 10 months. So, any such diploma you can join, or even 2 years masters program also could be an option, but then you have to make a very careful selection which diploma you want to do or which masters program you want to do, for what purpose you decide to take up that clarity also has to be there, and after that where exactly you will be landing. No further studies should be done with absolute clarity in mind. One should not study further for the sake of it, because in the professional world, more than the study, the important thing is what you intend to learn while you join something. Because if you are not learning and simply joining something, then it will be a sheer wastage of your time and money, right. Now, what is my role, since I was asked to take this first session? My role is, and for that matter the role of the other teachers is also this, to guide you in this area, that what exactly you want to do, and for further studies where and what you should take up, right. So, from my side I will give you some things, but then if you have certain queries I will be happy to take it up. Like if you want to do the masters program, masters program should be done when you have an academic bent. If you do not have, do not take up a masters program. I will never recommend anybody doing a masters program, because many of you, the way you have been studying here for 3 years, if in the similar fashion you want to spend 2 years more in having a masters program, that will be a waste. अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगता, एकेडमिक बेंड ऑफ माइंड नहीं है, तो मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं. ये क्लैरिटी होनी चाहिए किसी, इसलिए कि करना ज़रूरी है, इसलिए कि किसी ने बताया कि ज़रूरी होता है तभी कुछ अच्छा जॉब मिलेगा, तो आप 2 साल अपना और वेस्ट करेंगे. 3 साल वेस्ट किया जिन लोगों ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने यूटिलाइज़ भी किया, तो जो फिर 2 साल आप और वेस्ट करें उससे कोई फ़ायदा नहीं. But still, and then if you want to do a master's program, never do a conventional kind of master's program. Media education has a lot of flaws. One major flaw is that in most of the universities, whatever you study at the bachelor's program, the same papers, same things are repeated in the master's program. So, do not do that, because if you talk about the exposure, everything has been taught to you in all these 3 years. The BJMC syllabus of IP University is like that, right. So, there are some such programs available, like if I talk about Delhi only, Delhi में ही सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया में you will get a different kind of master's program. If you are more keen towards the production side, then in MCRC there is a 2 years masters in media, wherein the focus will be on production side. If you want to have a you want to know all about every platform, then the this convergence journalism program is also there, right. So, that could be another master's program. They have also started few programs in media technology, perhaps that master's program has also started in that area in Jamia, wherein you will be taught all about the technology, right.
So such kind of master's program should be taken up, or even in IP University the kind of master program is there, where in second year is one full year specialization, wherein some common papers will be taught in the first year, and in the second year you have the option of either opting for journalism or corporate communication or television production or new media. So take up any such program. So even IP University could be one option if you want to take up a master's program. Similarly, many more universities have started, though there are not many universities. Still there are handful universities which offer master's program in different areas. Most of the universities are in the same conventional mode. So that is one. Two, if you don't want to spend 2 years and you do not have an academic inclination, हाँ एक चीज़ और बता सकता हूँ इसके साथ ही, वो लोग जो थोड़ा बहुत रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हो या जो लोग टीचिंग में इवेंचुअली आना चाहते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली मास्टर्स प्रोग्राम इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि अगर आपको टीचिंग में आना है तो उसके लिए मास्टर्स इन एनी केस इज़ रिक्वायर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप. सेकंड इज़ यू हैव टू क्लियर द नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो वो लोग जो टीचिंग में आना का इरादा है वो उनको मास्टर्स प्रोग्राम ले लेना चाहिए, या जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं. रिसर्च के पेपर्स तुमको पढ़ाए गए हैं और आई बिलीव तुमको काफ़ी कुछ मीडिया रिसर्च के पेपर के अलावा भी द वे different papers are taken up and your practical papers are taken up, there also you would have come across with research element and all. Last year in SIFI also I believe 15 to 20 students wrote their papers, made their presentations mostly from the final year batch. So and research is there is a lot of scope. So that also opens a door after you take up the master's program. But if you are not interested in academics, if you are not interested in making a career in teaching, if you are not interested in research, then obviously you should not take up a master's program. Go for 1 year program, and there are different kind of 1 year programs from Delhi and outside. I mean, I am talking about within the country. Like you can take up any of the diploma programs which are there in Indian Institute of Mass Communication. They have 4 different diploma programs. One is in Hindi journalism, another is in English journalism, one is in advertising and public relations, and another one is on TV journalism, right? So these kind of programs you can take up. So it will take just 1 year. Not only that, you will learn new things, but you also get an opportunity to get placed directly from the industry. What is the benefit if you take these kind of programs? The benefit is you will learn not only by joining a diploma program and by remaining in an institute like IIMC, at the same time you also learn through your peers. This is one big advantage when you take up any PG program or diploma program, because at the bachelor's level I do not feel that many of you would have developed that kind of insight wherein you feel the need of learning from the peers. Though we always, I mean I personally always emphasize on that you should try to learn from your peers. But you find it difficult to understand this till second year and then the time is gone. But then in any PG program, that is the biggest thing, because anybody who gets admission in such programs which I am talking about, then lot of filtering happens. So the level that you possess while you join a PG program, majority of your classmates will be either of your level or better than you. Then learning becomes easy, and most of the people are oriented in a bachelor's program. The kind of program that you for which you are here, one basic problem that we and other teachers face, that you take lot of time in your orientation. 1-2 साल तो ये समझने में लग जाता है कि कहाँ आए हो, क्यों आए हो. इवन थर्ड ईयर तक भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता.
तो आपका वो टाइम निकल जाता है जब तक आपको ये समझ आए कि आपको क्या सीखना है और क्या करना है। तो अब जो निकल गया दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, लेकिन अब आगे की प्लानिंग की जा सकती है, उसी में हम लोग मदद कर सकते हैं कि आगे की जो प्लानिंग है वो थोड़ा ठीक से करो। ठीक है, तो और तीसरा जो फ़ायदा है, आप कोई भी पीजी प्रोग्राम अगर आगे पढ़ने जाते हैं तो इफ़ यू जॉइन सम गुड इंस्टीट्यूशन which has a credibility in the industry, then getting a job becomes smooth. Whether we talk about Jamia, whether we talk about IIMC, or we take the example of other institutions outside Delhi, like if we take examples of Xavier's, or if we take example of Asian School of Journalism, then obviously your doors are opened wide, because every such institution which I named, they have their own branding, they have their own name in the industry, and once you are studying, then getting an access in the industry is easy. And many of your seniors have been studying still, I mean Xavier's, the students studying. Just now there was a student which passed out perhaps 2 years back. He called me back about 15 days back. He is studying in Asian School of Journalism. So he was making a video program, television program there. So he wanted to take my interview on Zoom. So he did that. So lot of your seniors have been choosing those kind of options, right? So I gave you the options which are in Delhi. I gave you some options which are outside Delhi. And then I also gave you the option either to take up a 2 years master's or 1 year diploma program. And then there are other options also, like if you want to further go on the production side and you want to excel only in camera, you want to excel only in editing, you want to excel only in scripting, then you can go for FTI, Film and Television Institute, Pune, or this SRFTI, Kolkata. That could be the options. And also you can even opt for what's the name of that institute, Chennai mein? फिल्म्स के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, चलो तुमने कहा है तो फिल्म के बारे में ये क्लैरिटी रखनी ज़रूरी है. फिल्म है शुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 areas if anybody is interested in films, and since Piyusha pointed out this. एक कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं, दूसरा आप फिल्मों के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं. दोनों एक दूसरे से अलग एरिया है. ऑब्वियसली ओवरलैप है, बट करियर वाइज दोनों अलग एरिया है. ठीक है, अगर आपको फिल्म की पढ़ाई करनी है तो JNU चले जाइए, फिल्म बनाना है तो FTI चले जाइए. दिस क्लैरिटी शुड बी देयर. इंडिया में समहाउ अभी एजुकेशन ओवरऑल ही उतनी डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, और मीडिया एजुकेशन में भी स्टिल आई मीन वी आर लैगिंग मच बिहाइंड बिकॉज वी डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी. And Indian universities, again, Indian universities do not have departments like that. Like if you go to any foreign university of the West, then जर्नलिज्म बिल्कुल सेपरेट एरिया होगा. ठीक है, एडवर्टाइजिंग PR सेपरेट एरिया होगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगी. रिसर्च की पढ़ाई करनी है वो बिल्कुल कम्युनिकेशन और रिसर्च बिल्कुल डिफरेंट एरिया होगा. फिल्म प्रोडक्शन करनी है वो डिफरेंट एरिया होगा. हमारे यहाँ ये जितना भी मुश्किल से 10, 12, 15 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो अब कुछ अलग तरह के कोर्सेज शुरू कर पाएंगे, नहीं है हमारे देश. तो अगर आपको और फर्दर क्लैरिटी के साथ और स्पेशलाइजेशन के साथ अगर पढ़ाई करनी है, देन यू हैव टू गो आउट ऑफ इंडिया. अब वो उसके अलग डायमेंशंस हैं. यू नीड टू डिसाइड so many things. You need to decide how much your inclination is to study a particular thing which is not available in India. Only then you should think of going out. And also, do you have that much money in your pocket, or your parents have that much money in your pocket? यहाँ तो चलो बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप की 3 लाख रुपए ख़राब किया जिन्होंने पढ़ाई नहीं की.
तो बाहर जाके तो और 20-25 लाख रुपए बर्बाद करना होगा। तो जिनके पेरेंट्स के पास सरप्लस मनी है, दे कैन अफोर्ड। अदरवाइज आई विल नॉट आस्क एनीबडी टू चूज़ दिस ऑप्शन ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडी, क्योंकि आप बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ मनी, और यहाँ डीएमई स्टाइल की पढ़ाई करेंगे तो आपका सारा वेस्ट होगा, टाइम पैसा सारा। तो अनलेस यू हैव वेरी वेरी क्लियर विजन व्हाट फॉर यू वांट टू गो आउट, तभी जाना है, ठीक है। और ये क्लैरिटी हो, जैसे मैंने बताया आपको प्रोडक्शन में जाना है कि फिल्म स्टडीज़ में जाना है कि आपको जर्नलिज्म में जाना है, देयर कुड बी लॉट ऑफ ऑप्शंस डिपेंडिंग कि तुम्हें क्या पढ़ाई करनी है और किन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल। नॉट एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज, राइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू यूएसए टू यूके। सो this involves a lot of brainstorming. So any of you can I mean final year particular, even second year can start thinking in those lines, and we invited the second year because they will also get an insight what I am telling you to the final year today. So second year, I mean those second year students who are there, they are getting all this insight 1 year in advance. So that will help you in having your planning, right? So what I was telling you this, जैसे अभी FTI किसी ने कहा, तो एक है स्पेशलाइजेशन और फिर एक हो जाता है आपका सुपर स्पेशलाइजेशन। तो दोनों चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के यू कैन मेक योर प्लानिंग। Specialization means you want to do the production, then overall when we say production, it will involve your camera, your editing, your scripting, your pre-production, your post-production, everything is one. But then when you further want to have your super specialization and you want to do camera only, then you take up a program wherein you are doing camera and nothing else for 1 year or 2 year or 3 year. Obviously किसने कहा कि 3 साल का प्रोग्राम है FTI में? हाँ, तो स्टडीज़ एंड लर्निंग ये बहुत डिमांडिंग होती है। समहाउ तुम्हारी जनरेशन में ज़्यादातर लोगों के पास है नहीं है, जिसके पास है उसी को जाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये लगेगा तुम में से जो लोग कैमरा जानते हैं उनको भी, जो नहीं जानते हैं उनको भी, कि कैमरा सीखने के लिए 3 साल क्यों ख़राब करना। नहीं सर, अगर वही चीज़ हम अगर फील्ड में जाके करें, इंडस्ट्री में जाके करें ना, तो मास्टर करके, क्योंकि मास्टर हमने करें थ्योरेटिकली में पढ़ा हमने वहाँ पर भी सिखाया प्रैक्टिकली, लेकिन फील्ड में जाके एट द एंड में करना पड़ेगा ना वो। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा हुआ तो इस तरह के इंटरजेक्शन हो जाएं। आपको करियर बनाने के लिए सभी को 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, जो हम कोशिश भी करते हैं लेकिन उस तरह से कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि क्या क्या ज़रूरी है, तो तुमने ये पॉइंट उठाया तो मैं बता देता हूँ। आपको एक अच्छा करियर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मैं 1 2 3 करके बता देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मत समझना। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है नॉलेज। आप कैसे एक्वायर करते हैं आपके बात है। पुराने ज़माने में तो यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं होती थी, लोग गुरुकुल में जाके एक्वायर कर लेते थे। बहुत सारा होता था कि एक गुरु को पकड़ लेते थे, 20 साल उसके साथ रहते थे, वहाँ से कर लेते थे। आज के ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप यूनिवर्सिटी में आके, कॉलेज में आके कर सकते हैं। कॉलेज में जब आप या किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है, आप एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। आपके पास क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास 20 टीचर्स हैं, तो अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं तो वो 20 टीचर का ज्ञान आप उनसे ले लेंगे, ठीक है। तो जो पढ़ाई की अपनी इंपॉर्टेंस है, नहीं तो दुनिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज में ताले लग जाते। ज़रूरत ही क्या होती किसी को पढ़ने की, क्या है भैया यूट्यूब तो है ही है, कुछ यूट्यूब से सीखो और जो तुम कह रहे हो बाहर जाके काम करने लगो, ठीक है। एक आदमी होता है जो बीटेक की पढ़ाई करता है और फुल फ्लेजेड इंजीनियर बन के निकलता है। एक व्यक्ति होता है जो 3 साल की पढ़ाई करता है, पॉलिटेक्निक्स हैं तमाम सरकारों के, आप फिटर बन जाइए, इलेक्ट्रीशियन बन जाइए, वो पढ़ाई करता है। तो दोनों में कोई फ़र्क होता है ना। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये जब समझ लो लाइफ में तभी अच्छा है। पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप कितने भी अच्छे कुछ भी बन जाइए। सबसे पहले है आपकी एजुकेशन, बिकॉज only through the process of education you will acquire knowledge.
वो अलग बात है कि तुम में से बहुत सारे लोगों को लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसलिए आते ही नहीं, लेकिन वो ज़रूरी है। अभी नहीं, तुम्हें 5 साल बाद समझ में आएगी बात, ये 10 साल बाद समझ में आएगी, फिर रिपेंट करोगे यार पढ़ ही लिया होता तो ठीक होता, लेकिन फिर अब 10 साल बाद समझने से कोई फ़ायदा नहीं, आज ही समझना है। जितना लेट करोगे उतना ही लेट होते जाओगे करियर में। नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और नॉलेज एक स्पॉट बॉय को भी के लिए भी ज़रूरी होती है और एक डायरेक्टर के लिए भी ज़रूरी होती है, म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए भी ज़रूरी होती है, सबको ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आपके पास वो समझ नहीं है, आप एक, चलो फिल्म तो छोड़ ही दो, अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप एज ए फ़ोटोग्राफ़र करियर बनाना चाहते हैं, यहाँ भी आपको तय करना पड़ेगा आप न्यूज़ फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, वो आपको तय करना पड़ेगा। वहाँ भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कैमरा, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं एंड एवरीबडी फील कि कैमरा मोबाइल उठाया फ़ोटो ले लिया, लेकिन इतना आसान होता नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने आसान बना दी हैं चीज़ें, लेकिन फिर तो हर आदमी फ़ोटोग्राफ़र है दैट वे। आपके पास ऐसा क्या है जो किसी के पास नहीं? अगर सबको वही आर्ट आती है तो आपको ही क्यों कोई रखेगा, किसी को भी रख लेगा, जो सबसे सस्ता मिलेगा उसको रख लेगा। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जहां आप कैमरे की बात करें, आपको सब पता हो, सारा इन आउट पता हो, सारा कितनी तरह की फोटोग्राफी है पता हो, एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग। तो पहले तो हुआ नॉलेज। नॉलेज के लिए ही आप पढ़ने आते हैं, वो आपको पता हो या ना हो, लेकिन आए आप उसी के लिए थे। पढ़े या नहीं पढ़े वो आपकी चॉइस थी। दूसरे लेवल पे क्या है, आपकी है स्किल। ठीक है, जब आपके पास स्किल है तो आप अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ स्किल है, तो आप वो बिल्कुल ही नीचे के लेवल के, वो आप बड़े ही लोहार टाइप रह जाएंगे, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है नहीं। और नॉलेज होगी तो आप उसी टेक्नोलॉजी, उसी स्किल के साथ कोई नया एक्सपेरिमेंट कर देंगे, कोई नई चीज़ डिस्कवर कर देंगे, कोई इनोवेशन कर देंगे, क्योंकि वो पढ़ाई है आपके साथ, वो नॉलेज आपके साथ। ठीक है, तो सिर्फ स्किल से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कि बहुत सारे स्किल को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ स्किल से नहीं होगा। नॉलेज के साथ जब स्किल होगी तभी होगा। ठीक है, क्योंकि स्किल आज के समय में इतनी इस तरह की चीज़ हो गई है कि जो बच्चा पैदा होता है वो स्किल के साथ ही पैदा होता है। किसी 3 साल के बच्चे को 3 महीने 6 महीने के बच्चे को कोई बताता है कि ये मोबाइल है, उसको पता है मोबाइल है, उसके बगल में उसकी माँ ने रखा होगा, उठा लेगा, उसको खुद देखेगा, बटन दबाएगा, किस बटन से कुछ उसको समझ में आ जाएगा कि इसको दबाने से ये दिखाई देता है। किसने सिखाया उसको? कोई नहीं सिखा रहा, अपने आप सीख लेते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें बिलीव भी करते हैं कि टीचर की क्या ज़रूरत है, यूट्यूब से सीखेंगे। यूट्यूब की भी क्या ज़रूरत है, कैमरा लेके निकल जाएंगे, करने लगेंगे। तो स्किल टू सम एक्सटेंट इज सच थिंग विच इज़ ईजी टू एक्वायर। नॉलेज इज़ वन सच थिंग जिसके लिए बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं नहीं है, ये आपको तय करना है। बहुत सारे लोग बिना नॉलेज के भी ज़िंदगी निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जो किसी ज़माने में आप किसी टेलीविज़न चैनल में भी चले जाइए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से 30 साल पहले करियर शुरू किया था एज ए कैमरामैन। वो जैसे तुम कह रहे हो, वो पढ़ उड़ के नहीं आए थे, कैमरा चलाना सीख लिया, ओवर द ईयर्स करते गए। ऐसे ऐसे कैमरामैनों को मैं जानता हूँ जो आधी दुनिया घूम चुके हैं एज ए कैमरामैन। ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर ऑन जॉब सीखा। और दूसरा, वो 30 साल पुरानी बात थी, 2023 में 30 साल पुराना वो एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा। आज अगर बिना पढ़े लिखे हैं और आप कैमरामैन बनना चाहते हैं, कोई चैनल आपको घुसने नहीं देगा। तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। वो उस उदाहरण से ऐसे हैं कैमरामैन जो इतना सीख गए कि उनको सब आ गया। उन्होंने, कई लोग हैं, बुक्स लिखी हैं, अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, वो मतलब ऑथर भी बन गए, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना उतना नहीं आता था। तो लेकिन अब आज को 2023 वाली प्लानिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको नॉलेज के साथ एंटर करना पड़ेगा। एक और चीज़, भ्रांति निकाल देता हूँ, हो सकता है आपकी नॉलेज बहुत कम हो, आपने ऑन जॉब सीख लिया, आपको का स्किल सेट भी कुछ हद तक ठीक हो गया, आपको नौकरी मिल गई, फिर उसके बाद क्या?
आपको सपोज़ कहीं नौकरी मिल गई किसी न्यूज़ चैनल में, फिर क्या करेंगे? 5 साल बाद कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ थे वहीं रहेंगे। 10 साल बाद कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ थे वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक चीज़ आपने छोड़ दी, नॉलेज है ही नहीं आपके पास। तो आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हर साल एक इंक्रीमेंट भी मिलता जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे में जाएंगे, 5-10 हज़ार का जंप मिल जाएगा, आपको लगेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप ऊपर नहीं पहुंचेंगे कभी, टॉप पोजीशन कभी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको सिर्फ नॉलेज, तब फिर उस समय आप सोचें अब मैं कुछ नॉलेज एक्वायर कर लूँ, तब तक देर हो जाएगी। तो इसलिए अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। अभी आप अगर कहीं कुछ आपकी कमियां हैं, आप स्टिल यू हैव टाइम टू एड्रेस दोज शॉर्टकमिंग्स फॉर अनदर 1 ईयर और 2 ईयर। उसके बाद फिर आपके पास ज़्यादा मौके नहीं होंगे। आपके पास तो ये सुनने का भी मौका नहीं है कि कोई ये बता दे आपको जो मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, यू बिलोंग टू ए डिफरेंट जनरेशन, बट देन इट्स आवर जॉब बिकॉज वी ओन यू, so it's our responsibility to tell you all these things whether or not you are interested in. अब इससे ज़्यादा कोई प्रीचिंग से कुछ है नहीं, मैंने बहुत ही फोकस चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। इसके बियॉन्ड अगर कोई क्वेरीज हैं देन आई विल बी हैप्पीली टेकिंग दैट अप। एनीबडी 3rd ईयर या 2nd ईयर कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले। मीडिया में काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारी बातें हैं, मैं जैसे जैसे मेरे स्ट्राइक हो रहे, मीडिया में काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वैसे तो सभी क्षेत्रों में, लेकिन अभी हम मीडिया की ही बात कर रहे हैं। यू हैव 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप समझ पाएँ तो ठीक है, नहीं समझे आपका लक। आपको इंक्विजिटिव होना पड़ेगा, तो जानने की इच्छा होनी चाहिए, दैट इज़ 1। दूसरा, सवाल पूछने की आदत होनी चाहिए। ज़रूरत नहीं है फिर भी सवाल पूछो, जब भी सवाल पूछोगे कुछ नई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? तो जो आदमी जिस भी व्यक्ति की कुछ जानने की इच्छा नहीं है और जो सवाल नहीं पूछना चाहता या पूछने की हिम्मत नहीं होती या पूछने की इच्छा नहीं होती या सवाल आते ही नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब आप गलत जगह पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ और करना था, गलती से आ गया फिर यहाँ पे। तो अभी भी टाइम है, ये तो ट्रीट BJMC एज ए नॉर्मल बैचलर्स डिग्री एंड चूज द नेक्स्ट कोर्स एज पर योर विल। जहाँ दिल करे वहाँ जा वो पढ़ाई करो आगे। 3 साल में तो कुछ ऐसा वेस्ट हुआ नहीं है, यहाँ नहीं करते, कहीं से भी करते बैचलर्स डिग्री मिल जाती। बैचलर्स डिग्री तो एसेंशियल है कहीं भी, तो टेक इट एज ए फर्स्ट स्टेप। उसके बाद वो करो जहाँ जो तुम्हें अच्छा लगता है और जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कैलिबर का, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ का बेस्ट इस्तेमाल हो सकता है, बजाय इसके कि मीडिया की पढ़ाई करेंगे भले ही कुछ नहीं आता हो और कुछ नहीं करना चाहते हो, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी कोर्स किस आधार पे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने तुम्हें स्ट्रेट आंसर दिया, वो इस पे आधार पे आपको तय करना है कि उस एरिया में अच्छी पढ़ाई और अच्छे प्रोफेशनल से पढ़ाई का मौका कहाँ मिलेगा, ठीक है? तो PG लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे, जैसे ज़ेवियर्स की अगर हम बात करें, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मोर और लेस दिल्ली के मुकाबले बॉम्बे में ज़्यादा सेंटर्ड है, ठीक है? तो जितनी भी बड़ी एजेंसीज़ हैं या जितने अच्छे नामी प्रोफेशनल्स हैं वो सब बॉम्बे में हैं। और ज़ेवियर्स के कोर्स में क्या है, उनके रेगुलर टीचर्स नहीं पढ़ाते, गिनती के हैं, सारे इंडस्ट्री के लोग हैं। तो अगर 10 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, उसमें हर एक में से कोई ना कोई तुम्हारा क्लास लेने आ रहा है, तो उससे फ़ायदा क्या है? वो पढ़ाने के दौरान ही पकड़ लेगा कि ये इसमें कैलिबर है, तुम्हें नौकरी मांगनी ही नहीं किसी से, ऑटोमेटिक रूट में मिलेगी नौकरी। हाँ, वहाँ भी यही, अगर 50 लोग क्लास में हैं, कुछ ऐसे होंगे जो उन टीचर्स की निगाह में आ जाएंगे और वो ले जाएंगे अपने आप ही उठा के। परफॉर्म तो करना पड़ेगा। देखो, आज 2023 में नॉन परफॉर्मर के लिए जगह नहीं है, किसी भी फील्ड में परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा।
तो क्लास में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्लास से बाहर भी परफॉर्म करना पड़ेगा, और जब परफॉर्म करने के लिए आना पड़े, सपोज आपने जेवियर्स में एडमिशन ले लिया, मैंने कहा बहुत अच्छा ले लो, और आप आधे दिन क्लास में ही नहीं गए, तो आप जेवियर्स की डिग्री लेके घूमते रहेंगे, नौकरी नहीं मिली। तो परफॉर्म करना पड़ेगा। यू शुड बी सीन, यू शुड बी एबल टू क्रिएट ए मार्क फॉर योर सेल्फ, तभी यह जगह मिलेगी। क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है, और अभी बाहर की दुनिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आप केवल ये बैचलर्स डिग्री जो आपके पास होगी, ये डिग्री लेके हर साल हज़ारों हज़ार लोग निकल रहे हैं। आप ही को कोई क्यों मौका दे, दूसरे को क्यों नहीं दे? आपके पास इस बात का सवाल का जवाब होना चाहिए। मैं अगर आपको हायर करूँ, मैं आपसे यही पूछूंगा, 100 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो मैं तुमको क्यों हायर करूँ? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो 99 के पास नहीं है? तभी है, क्योंकि मीडिया में सारी बुराइयों के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मीडिया में, बट एक बात अभी भी है कि ये कम्प्लीटली परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री है। परफॉर्मेंस बेस्ड का क्या मतलब होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब ये होता है कि सपोज कोई सिंगर है जो तुम्हें पसंद है, ठीक है, एग्जाम्पल है जिससे समझ में आ जाएगी कहानी। कोई सिंगर है जो तुम्हें बहुत पसंद है, तो तुम्हें उसके गाने पसंद हैं, और कौन गाता है तुम्हें ये पता है। जो भी सिंगर किसी को पसंद है, सारे ज़्यादातर लोग गाने सुनते होंगे, तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि उसने पढ़ाई क्या की है? बीए पास किया है कि एमए पास किया है कि पीएचडी की है? ये पढ़ के उसके गाना सुनते हो कि गाना ही सुनते हो? हाँ। तो ऐसे ही मीडिया में जब आप कहीं कुछ कर रहे हैं, अगर सपोज आप न्यूज़ में आप स्क्रिप्ट अच्छी लिखते हैं, तो जो पढ़ेगा, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, तो मैं कोई रिपोर्ट्स इतनी अच्छी वेल रिटन होती हैं और उसके बाई लाइन होती है, तो मुझे लगता है यार इसने तो बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी। मुझे नहीं पता कि उसने क्या पढ़ाई की है, मैं तो उसको जो लिखा वो पढ़ के पता लगा अच्छा लिखता है। तो अच्छा सिंगर आप इसलिए पसंद करते हैं, वो अच्छा गाता है। अच्छे स्क्रिप्ट लिखने वाले को इसलिए पसंद करते हैं, वो अच्छा लिखता है। उसने क्या पढ़ाई की इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पढ़ाई बेईमानी है, उस पढ़ाई से ही वो वहाँ तक पहुँचा है। तो आपको परफॉर्मिंग आर्ट में अपनी परफॉर्मेंस है, मीडिया 100% परफॉर्मेंस बेस्ड है। आपको अपनी पढ़ाई से ही अपनी जगह, अपनी परफॉर्मेंस से ही अपनी जगह बनानी। तो जो लोग परफॉर्मेंस का मतलब हुआ जो लोग अच्छा लिख नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ और लिखने से याद आया, तुम कुछ भी कर लो मीडिया में, कैमरा चलाने से लेके और न्यूज़ राइटिंग तक, लिखने से पीछा नहीं छूटेगा, तुम्हारी इच्छा हो या नहीं। जिसको अच्छा लिखना नहीं आता है वो मीडिया में उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो अगर लिखना अच्छा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अभी भी सीख लो, अभी भी टाइम है। अच्छा लिखना आना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बोलना नहीं आता हो तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन लिखना नहीं अच्छा आता है तो जगह कहीं, फिर ना टीवी में जगह मिलेगी, ना प्रिंट में लगी जगह मिलेगी, ना डिजिटल में जगह मिलेगी, ना एडवर्टाइजिंग में जगह मिलेगी, ना पीआर में जगह मिलेगी, ना फिल्मों में जगह मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलनी। कुछ भी कर लो नहीं मिलनी, मिल जाएगी, तुम्हें लगेगा कि मिल गई है, लेकिन वो बस टाइम पास होगा। द काइंड ऑफ प्लेस दैट यू माइट बी लुकिंग फॉर विल नॉट बी देयर। तो इसलिए लिखना कि अगर अभी भी किसी की वीक है तो उसको ठीक कर लो। हम तो बीएमसी में पेपर पढ़ा देते हैं, राइटिंग स्किल्स का भी पेपर है, इसका भी पेपर है, बट कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग लिखते हैं तुम में से रोज़, मुझे नहीं पता। कोई लिखता है ऑन ए डेली बेसिस? क्या लिखती हो? उस पब्लिश होती है कि कहाँ पब्लिश करती हो? ठीक है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो रिसर्च मैं कह रहा था ये रिसर्च थोड़ा अलग है। एक ये क्लियर कर दूं। दूसरा, रिसर्च का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। रिसर्च गूगल से जो किया जाता है वो सर्च होता है, रिसर्च नहीं होता। ठीक है, रिसर्च जो तुमने पढ़ाई की होगी, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड, तो रिसर्च एक सीरियस डिसिप्लिन है जो एक प्रॉपर मेथडोलॉजीज़ के साथ होती है।
जो तुम लोग करते हो वो गूगल सर्च है, ठीक है। गूगल सर्च अच्छी बात है, मैं किसी को ही नहीं कह रहा कि कोई ख़राब काम करते हो, मैं भी सुबह से शाम तक करता रहता हूँ, लेकिन गूगल सर्च आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, वो भी तब जब आपको ये पता हो कि सर्च करना कैसे है। तुम कोई भी टॉपिक लो, तुम भी सर्च करो, मैं भी सर्च करता हूँ, तुमको नहीं कुछ मिलेगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मुझे क्या क्या मिलेगा। तो गूगल सर्च भी वो तुम्हारी पढ़ाई का हिस्सा होगा वैसे तो ये, तो गूगल सर्च अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गूगल सर्च से काम नहीं चलेगा। जब तुमने कोई गूगल सर्च की, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई, तुमने स्क्रिप्ट लिख ली, उसके बाद जो तुमने वो सर्च करके कुछ कंटेंट निकाला, उसमें जो वाइटल एलिमेंट्स थे, क्या वो तुम्हारे ब्रेन में गए? क्या तुम्हें याद हो गया? अगर तुम्हारा दिमाग तेज़ है ठीक है, नहीं तो क्या तुमने कोई नोट्स बनाए, कहीं उसको एक जगह फोल्डर में रखा कि ये तुम्हें 4 नई चीज़ें मिली? नॉलेज, जो मैंने पहले कहा, नॉलेज क्या है? नॉलेज इज एन एक्यूमुलेशन of vital information that you have filtered and that you have stored in your mind, और वो जब ज़रूरत पे वहाँ से निकाल लेते हैं। इंस्टेंट है, आपको कंप्यूटर पे नहीं बैठना, वो आपके बैक ऑफ माइंड ही है, इमीडिएट आपको याद आ जाएगा उसका, जहाँ उसकी एप्लीकेशन होगी, क्योंकि आपने उसको समझा, पढ़ा और आत्मसात कर लिया, दिमाग में बैठा दिया। तो क्या वो करती हो? अगर नहीं करती हो तो फिर ये इंस्टेंट ही चलता रहेगा, फिर ये इसमें डेप्थ नहीं आएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुतों को ठंड लग रही थी, थोड़ी गर्माहट आ गई, ठीक है। सर ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोली थी, स्टडी एंड लर्निंग। सर ने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें उठाई थी और आपने इसको ग्रैब किया हो, अच्छी बात है, बहुतों ने नहीं किया मुझे मालूम है, पर सर से आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए था, अगर सर इसका जवाब आप दे दें। हम सब लोग मीडिया में आते हैं, सब लोग बोलते हैं सब लिंक हैं आपके नौकरी करने के लिए, कोई जान पहचान है मीडिया इंडस्ट्री में तभी नौकरी मिलेगी। वो क्यों पूछते हैं? लिंक बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब लिंक बनते कैसे हैं? कल कोई गेस्ट आया आपके पास, आप उसका नंबर ले लीजिए, उसका फ़ोन नंबर ले लीजिए, उसको आप विश करिए। जब आप चैनल में जाएंगे तो चैनल में घुसने तो देंगे नहीं, तो कोई इन्हीं के थ्रू जाएंगे ना। तो सर एक मेरा प्रश्न है, अगर आप उसको संक्षिप्त में उसको बता दें। पहले था कि रिपोर्टर की क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, अब मल्टीटास्कर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको राइटिंग स्किल्स भी आने चाहिए, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आने चाहिए, कि बेसिक एडिटिंग जो होती है शॉर्ट्स की, वो रिपोर्टर खुद करके देता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो मल्टीटास्कर, पहले न्यूज़ में 5 लोग जाते थे शूट पर, अब सिर्फ एक जना जाता है। सेल्फ रिपोर्टिंग मोबाइल पे कर दो, एडिट भी करके उनको रफ कट दे दो। तो मल्टीटास्कर जो पहले जिस तरीके से रिपोर्टिंग होती थी, अब जो मल्टीटास्कर का जो कॉन्सेप्ट आया है सर, तो उसके लिए ये कैसे तैयार करें अपने आप को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 साल तो जो किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग। मल्टीटास्किंग का मतलब सिर्फ यही हुआ है कि यू आर इक्विप्ड in so many skills and can operate with that technology simultaneously. Like पहले कैमरा वाला अलग चलता था और जो रिकॉर्डिंग वाला था वो एक और होता था। जब तो कैमरे पे ही 2 आदमी चलते थे साथ में रिपोर्टर के, तो अब वो दोनों नहीं है। तो अब जिस तरह से मोबाइल जर्नलिज्म का ज़माना आ गया, जो विशाल ने कहा कि आप अपने मोबाइल से ही सारी काम कर लेते हैं, पूरी किट है, ठीक है, लेकिन क्या आपके पास रिक्विजिट नॉलेज है? अगर रिक्विजिट नॉलेज नहीं है तो एक तरीका तो जो इसका है ज्योति ना, क्या नाम था, ज्योति, हाँ, एक तरीका तो ज्योति वाला है कि आपने इंस्टेंट गूगल किया और देख लिया। दूसरा तरीका इसके साथ ये है कि क्या आपको जिस विषय में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्या आपको कोई नॉलेज है? इसको मैं बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दे देता हूँ। अगर तुम लोगों में से टीवी कुछ लोग भी देखते होंगे, तो अगर किसी ने करण थापर का कोई इंटरव्यू देखा किसी ने? बताते जाओ। नहीं,
अब देखो ये है, क्या कभी किसी ने राजदीप सरदेसाई का कोई प्रोग्राम देखा? 1 2, ठीक है। चलो मैं अब आसान सा नाम ले लेता हूँ। क्या किसी ने कभी सौरभ द्विवेदी का कोई प्रोग्राम देखा है? इसमें भी 3-4 ही हैं, देख लो विशाल, इसमें भी ज़्यादा नहीं, मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा हाथ उठ जाएंगे। हाँ रवीश कुमार का देखा होगा। हाँ, तो 1 घंटे तक वो बोल सकते हैं अपने विषय पे। तो क्या तुम्हारे पास वो कैलिबर है कि तुम 5 मिनट भी बोल सकते हो एक विषय पे? अगर वो नहीं है तो टेक्नोलॉजी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी डेवलपमेंट हो जाए दुनिया में, टेक्नोलॉजी हमेशा व्यक्ति की सबॉर्डिनेट रहेगी। हो सकता है पता नहीं 50 साल 100 साल बाद हो जाए कि आदमी ही ना रहे, टेक्नोलॉजी आदमियों को भी बनाने लगे, हो सकता है कोई दिन आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो टेक्नोलॉजी आपकी सबॉर्डिनेट ही रहेगी। तो आप व्यक्ति ही इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति इम्पॉर्टेंट का मतलब उसका दिमाग इम्पॉर्टेंट है। उसका जब नॉलेज की हम बात करते हैं तो नॉलेज में सब कुछ आ जाता है। नॉलेज में आपकी सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, आपका इंटेलिजेंस आ जाता है, आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, आपकी रैशनैलिटी आ जाती है। अगर वो नहीं है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी आपकी मदद नहीं करेगी। तो सबसे पहले नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करो। जिस एरिया में इंटरेस्ट हो वो नॉलेज, आप पॉलिटिकल बीट करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल बीट आपको सब पता हो। तुम अगर एंटरटेनमेंट बीट करना चाहती हो तो इंस्टेंट वाला तो ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट ये होना चाहिए कि तुम्हें सब पता हो। तुमको सारा जो भारतीय सिनेमा का इतिहास है वो तुम्हें पता हो, जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी बड़ी वेब सीरीज़ आ रही हैं, सारी तुमने देखी हो, सब तुम्हें पता हो। कंटेंट के लेवल पे क्या हो रहा है, फिल्में किस तरह की के प्लॉट पे आ रही, सब पता हो। जब वो आपको पता है तभी टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगी। सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई लिखाई को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जो अभी विशाल सर ने कहा वो मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई लिंक से कुछ नहीं होने वाला। लिंक सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पे आपकी मदद कर सकता है, सिर्फ एक स्टेप पे। कि आपको कहीं जैसे बताया शायद घुसने को कहीं नहीं मिल रहा है तो किसी का नाम लाके आप घुस गए, वो क्या करेगा? वो अगर आपको जानता है, कॉलेज में आया था, रिसोर्स पर्सन था, आपने उससे बात की थी, उसको याद आ गया, तो वो क्या करेगा? आपका CV HR तक पहुंचा देगा। तो वो लिंक आपको इतना फ़ायदा पहुंचा कि आपका जो CV डस्टबिन में जाने की बजाय HR में चला गया। उसके बाद इंटरव्यू तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। मीडिया में चाहे कोई किसी का कितना भी सगा हो, नालायक आदमी को कोई भी एम्प्लॉयर रखता है ना, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। ठीक है, मैंने ऐसे सीन देखे हैं। न्यूज़ 24 में जब मैं काम करता था, आईजोन्स का डायरेक्टर था, तो मैं देखता था कि रोज़ एक आदमी को निकाल दिया जाता है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था यार, रोज़ एक को क्यों फायर कर रहे हैं। तो एक दिन मेरे सामने एक लड़की को फायर किया गया, तो मैंने पूछा यार क्यों फायर किया। तो उन्होंने फिर जो एडिटर थे उन्होंने उसकी 3 कॉपी मुझे दिखाई। कहा ये तीसरी बार है, अब अगर इसको हम रखेंगे तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। आप ब्लंडर्स कर रहे हैं रोज़। तो अगर आपका के फादर भी मालिक हैं तो आपको कहेंगे यार तुम मौज करो, 2 लाख रुपए घर में तुम्हें भिजवा देंगे, या ऑफिस मत आना, क्योंकि वहाँ जाके तो आप चैनल बंद करा देंगे, ऊट पटांग खबरें चल जाएंगी, कुछ का कुछ चला जाएगा। तो जो इतना तगड़ा कंपटीशन है, व्यूअर्स निकल जाएंगे, दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। तो कौन चैनल ये चाहेगा कि उसके व्यूअर्स उसके हाथ से निकल जाएं? आपकी वजह से जा रहे हैं, वो आपको 1 मिनट टॉलरेट नहीं करेगा। तो इसलिए ये आपको समझना जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी, कोई सोर्स सिफारिश नहीं चलेगी। जो आप काम करें, क्योंकि आपका काम लाखों करोड़ों लोगों तक हर मिनट जा रहा है। आपने जो लिखा, जो बोला, वो लाखों लोग देख रहे हैं। अगर उसमें गलती है तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, कोई आपको नहीं रिसीव करेगा। Very much, sir. And then
I request Dr. Sushmita Bala ma'am, head media school for concluding remarks. Ma'am. सेशन इंटरेस्टिंग नहीं था, है ना, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं थे। सर ने जितनी भी बातें की तुम लोगों से, उसमें पॉइंट वाइज मैं कुछ बता रही हूँ। सर ने बोला डीएमई में पढ़ाई की बात जो हमारी की गई, इट मीन्स सिलेबस अच्छा नहीं है या टीचर्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो पढ़ना ही नहीं है, सब्जेक्ट की नॉलेज कैसे होगी। सर ने बात की नॉलेज और स्किल की। हमें कॉलेज आना ही नहीं है तो स्किल भी नहीं आ सकती और नॉलेज भी नहीं आ सकती। सेल्फ स्टडी हम करते नहीं हैं, लाइब्रेरी में हम जाते नहीं हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो ये आपके सामने आ गए। हमारे को करना क्या था, हमें प्रॉपर क्लासेस करनी थी, हमें प्रॉपर सेल्फ स्टडी करनी थी, हमें लाइब्रेरी में से अपने आप बुक्स देखनी थी। टीचर्स ने हमें नोट्स भेजे, कंटेंट क्या भेजा, नोट्स नहीं भेजे गए, शिकायत आ गई। पीपीटी नहीं भेजी, मैम आपने पीपीटी नहीं भेजी। पीपीटी और जो टीचर सिलेबस भेज रहे हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू। नॉलेज उससे नहीं आती केवल। सिलेबस बहुत अच्छा है, सिलेबस मल्टीटास्किंग बनाने वाला है, जो सर ने बोला कि मल्टी टैलेंटेड होने का मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन यहाँ पे, मैं केवल कालिदास का एग्जाम्पल अगर ले लूँ, ये कैमरा भी करने में इंटरेस्टेड हैं, रिसर्च भी करने में इंटरेस्टेड हैं, रोज़ कॉलेज आने में भी इंटरेस्टेड हैं। क्यों हैं भाई? ये भी घर में बैठ सकते हैं, ये भी 4th सेमेस्टर से जॉब कर सकते थे। तो मल्टीटास्किंग, अगर एक कालिदास जैसा स्टूडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है तो इट मीन्स कि 5 और बंदों की वहाँ ज़रूरत नहीं है। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टूडेंट को हायर कर लिया, एक पर्सन को हायर कर लिया, तो उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई। दिस इज़ एग्जाम्पल। तो ये हमें तो उतना स्ट्रांग बनना है ना कि मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड बनने के लिए आपने 4 और स्टूडेंट की काबिलियत को अपना लिया है, और जो वाकई में कुछ नहीं कर रहे हैं वो वाकई में कुछ नहीं करेंगे आगे भी, ये भी पता है। क्लियर? इसके अलावा जो एक परफॉर्मेंस की बात की सर ने, कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो आपने बेसिक्स में नहीं सीखा, क्योंकि आपने 12th तक नहीं कुछ सीखा, लेकिन आपको 3 इयर्स का चांस मिला। एडमिशन तो हमने ले लिया, लेकिन हमने उन 3 इयर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा यूटिलाइज किया, देन 3rd एंड 4th में आने के बाद हमें लगा वी आर एनफ कॉन्फिडेंट और बहुत स्किल है हमारे अंदर, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग केवल हमें कल्चरली नहीं होना है, हमें स्ट्रॉन्ग एजुकेशन में भी होना है, स्किल में भी होना है, परफॉर्मेंस में भी होना है, एंड एकेडमिक्स में भी होना है। इट मीन्स कि हमारे लिए सारी चीज़ें हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं। पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होने की बात हुई, जो एग्जैक्टली सारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। जैसे भी सेंट जेवियर की बात हुई, JNU की बात हुई, IMC की बात है। सो दिस इज़ नॉट सो इजी कि आप उस कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं तो आपको वो सीट मिलने वाली है। सिम्बॉयसिस है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेते हैं और वही स्टूडेंट जाते हैं जो कैपेबल हैं। उनका कॉम्पिटेंट कितना है, वो उनमें कितना कॉन्फिडेंस है, वो कितना अपने को प्रूव कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो आपका स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप कुछ काम करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम ये समझते हैं कि वी आर कॉन्फिडेंट एनफ, तो वो ये आपकी गलत फहमी है। सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए ये है। कुछ स्टूडेंट मुझे दिखता है, शुरू से दिखता है कि वो काम अच्छा कर रहे हैं, कॉलेज में कितने टाइम आ रहे हैं वो नहीं मालूम, लेकिन वो
काम कर रहे हैं और वो उनका शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी सैलरी में हाईएस्ट सैलरी जो मुझे मेरे अभी तक पता चली है वो 28,000 आई थिंक है, इसके अलावा सबकी कम है, तो अगर सेम सैलरी पे काम करना है हमेशा तो वो दैट इज़ गुड फॉर यू। हमें लगता है कि हम एफर्ट्स ये करते हैं कि ज़्यादा सैलरी पे जाओ। इंटर्नशिप, बहुत सारे स्टूडेंट इंटर्नशिप पे गए हुए हैं वो जो वापस नहीं आए। इंटर्नशिप इज़ नॉट ऑलवेज फॉर यू। कभी तो जॉब करोगे और इंटर्नशिप करते रहो, हो सकता है कि वो तुम्हें वहाँ रिक्रूट कर लें, लेकिन जो यहाँ मिस कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ग्रेजुएशन के बाद जॉब सब लोग मांगते हैं, हम हर ऑर्गेनाइजेशन ये केवल एक्सप्लॉइट कर रहा है जो तुम्हें रखे हुए हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब करना चाहिए। जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो आपको LOR की ज़रूरत होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। वो कैसे मिलेगा जब हम स्ट्रॉन्ग ही नहीं हैं? और क्यों दिया जाए? मैंने कई लोगों को नहीं दिया, हायर स्टडीज़ के लिए गए, मैंने कुछ लोगों को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता था ये यहाँ 3 साल इन्होंने कुछ नहीं किया और मेरे नाम से अगर मैं लेटर दे रही हूँ, इशू कर रही हूँ, तो ये वहाँ भी मेरा नाम डुबोने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से लेटर आता है कि जस्ट अप्रूव दिस। ये नहीं कि आपको LOR दे दिया उसके बाद वो पूरा हो गया, वो वहाँ से हमें फिर से एक मेल भेजते हैं कि नाउ टेल मी हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि लेटर सबको दिया जाता है। अमूमन सारे ऑर्गेनाइजेशन लेटर दे देते हैं कि ठीक है, हम कहीं बैरियर नहीं बने, हम इनको जॉब के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए जाने दें। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है इस बार से कि मैं बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को LOR दूंगी एंड लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी दूंगी, लैंग्वेज के लिए जो दिया जाता है। और लिस्ट पूरी है मेरे पास, मुझे मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, तो दैट इज़ अनफ फॉर मी। इसके अलावा अभी बात हुई बहुत सारी कि मल्टी टैलेंटेड होना और ये सारा, तो उसमें तुम लोग जितने लोग भी मीडिया चैनल्स को फॉलो करते हो, जिसको भी फॉलो करते होगे, उसमें बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। सो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ये देखिए दूसरा बोलता कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमें एंकरिंग में जाना है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें कैमरा करना है, लेकिन हमें ये भी देखना होता है, तुम देखते होगे नीचे जो न्यूज़ आ रही होती है उसमें किस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ हो रहा है, किस तरह से लोग प्रोनंसिएशन उनका क्या है, कभी सिटी का नाम गलत बोलेंगे, कभी पर्सन का नाम गलत बोलेंगे, कभी पर्सन के नाम के नीचे नाम ही गलत आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती, वो क्यों होती हैं? बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम सारी चीज़ें करें लेकिन अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर लें, बेटरमेंट के लिए जो कर सकते हैं वो करें, तभी ये सेशंस जितने भी तुम्हारे लिए हो रहे हैं, क्योंकि जो भी अभी लोग आएंगे वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लोग आएंगे। और हमारे अब क्या है, अभी सिर्फ 6 सेमेस्टर के लिए और 4th के लिए प्लान किया था, पर मेरा आज मानना ये था कि हम सिर्फ 6 के साथ बात करते हैं, 4th के साथ आज बात नहीं करेंगे, 4th के लिए हम फिर किसी दिन सेशन कर लेंगे। लेकिन आप देख लीजिए 6th के स्टूडेंट्स कितने हैं एंड 4th के कितने हैं। इट मीन्स 4th सेमेस्टर इज़ मोर इंटरेस्टेड देन 6th सेमेस्टर। लेकिन जॉब में अभी किसको जाना है? 6th को जाना है। इट मीन्स कि आप सभी को एक मैसेज है कि आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट बेस्ट सोचें, जहाँ भी जाना है उसके लिए बेस्ट सोचें, और अपना करियर, जिनको वाकई में कुछ नहीं करना है उनके लिए तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली 90,000 फीस देने के बाद अगर हमें लगता है कि हम ज़ीरो निकल के जा रहे हैं, हर साल 90,000 80,000 समथिंग दे रहे हो और आफ्टर 3 ईयर कहीं स्टैंड नहीं करते हो, दैट इज़ बेड फॉर योर पेरेंट्स एंड यू ऑल्सो। दिस इज़ नॉट गुड। तो
अभी तुम्हारे पास 2.5 मंथ कम से कम है, उसमें अपने को इम्प्रूव कर सकते हो फॉर 6 सेमेस्टर, क्योंकि फाइनल प्रोजेक्ट जैसे ही सबमिट करोगे वैसे ही हम आपको फ्री करेंगे कि आप इंडस्ट्री में जाएं, जॉब करें, अच्छा काम करें, और उसके बाद LOR मैं दे सकती हूँ. थैंक यू. Thank you, ma'am. And I request Dr. Shefali come and give the vote of thanks on the behalf of Training and Placement Cell. Thank you so much, sir, for such an insightful session. Throughout these 3 years, we teach students a lot of things, and ultimately, not everyone has a clarity of what they have to do once they graduate from the college. So I hope today, after sir's session, you did get an insight of what exactly you have to do, whether you have to go for post graduation or job, and even if you want to go in these two fields, where exactly are you headed towards. Also, sir also mentioned some colleges as well. So बहुत अच्छे colleges सर ने बताए हैं. जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स, जो भी सर ने कॉलेजेस बताए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अप्लाई देयर, एंड इट्स गुड इफ़ यू गेट इन देयर, क्योंकि वहाँ पे बट अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको वहाँ पे कुछ सीखना है या नहीं सीखना है. सो इट्स आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज सेशंस, एंड आई होप टू सी यू ऑल in all the sessions that are organized under the CMS. So thank you so much, sir, for taking time and guiding these students here. Lastly, I would like to thank the entire production team for helping the placement and training cell to help organize this event. Thank you so much, sir.